ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایس ڈی پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، جن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ جو شراب پیتا ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو، چوتھا وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ لیکن یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر وہ بھی شخص، وہ جو گناہ گار ہیں، سر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کا روزہ بھی قبول کرتا ہے۔ اور ہم اب پروگرام کو اپنے آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوبارہ سے رخ کریں گے مذہبی اسکالر کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوال۔ سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ سخاوت جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جتنا بڑا کوئی عمل ہوتا ہے نا، وہ عمل اتنی بڑی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سخاوت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اسے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی سرکار کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سخاوت اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ٹھہرا ہے۔ ہر سخی سرکار کی سخاوت پہ قربان، انبیاء کی سخاوت پہ قربان۔ سارے انبیاء کو اللہ رب ذوالجلال نے مقام سخا عطا کیا ہے۔ ہر نبی اپنے دور کا بہت بڑا سخی تھا۔ بے شک بے شک۔ سخاوت ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے اسلام کے اندر۔ لوگ اس کی حکمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ واہ واہ۔ اصل میں ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں جی، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں، چاہے باطنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ گھریلو نعمتیں ہیں، معاشی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کاروباری نعمتیں ہیں، اولاد کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں نعمت ہماری نعمت ہے۔ سارا کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ واہ واہ۔ اب سارا کچھ جب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اوکے۔ تو اب وہ خود حکم دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو میرے راہ میں خرچ کر۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ جب دیا میں نے، جب عزت دی ہے میں نے دی ہے، شہرت دی ہے میں نے دی ہے۔ دیکھیں نا، وقت دینا بھی یہ سخاوت میں آتا ہے، ارے واہ واہ۔ علم کا دینا بھی سخاوت میں آتا ہے، کیا بات۔ ظاہری مال کا لٹانا بھی سخاوت میں آتا ہے۔ جب علم دیا اللہ نے دیا، عزت دی اللہ نے دی، شہرت دی اللہ نے دی، مال دیا اللہ نے دیا، اب حکم اس کا یہ ہے کہ میرا دیا ہوا ہے میری راہ میں خرچ کرا۔ اور اتنا عظیم عمل ہے، ایک بات مجھے حدیث نبوی یاد آ گئی، اتنا عظیم عمل ہے سخاوت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء، تمام جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تک، سارے انبیاء یہ خواہش کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اعزاز ہے۔ عمل کتنا سا چھوٹا سا ہے، اتنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، اب انعام کیا مل رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وبعید من النار۔ فرمایا کہ سخی اللہ کی قربتوں میں ہے، ادھر بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ کی قربتوں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سخی سخاوت کے باعث جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا حبیب ہے۔ سخاوت کے باعث انسان کو حبیب اللہ کا انعام مل رہا ہے، اللہ کے دوست ہونے کا انعام مل رہا ہے۔ سخاوت کے باعث انسان کو اللہ کی قربتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہائے ہائے۔ سخاوت کے باعث انسان کو دوزخ سے آزادی کا مژدہ دیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے اگر انسان سمجھ جائے۔ سخاوت کرنے سے خود انسان کا ہی فائدہ ہے۔ علامہ صاحب، ایک ضمن میں کویسچن یاد آ رہا ہے مجھے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو صدقہ، خیرات، فطرانہ، یہ تو فرائض میں شامل ہوتا ہے، کیا یہ جو کرتے ہیں ان کو بھی ہم سخی سخاوت میں لائیں گے؟ یہ تو فرائض میں شامل ہے۔ دیکھو جی، یہ صدقہ کرنا ہے یا خیرات کرنی ہے یا زکوٰۃ دینا ہے، یہ سخاوت کے پہلو میں تو آتا ہی ہے نا۔
कंजूस आदमी तो ज़कात भी नहीं दे सकता। सही है। कंजूस आदमी के लिए तो ज़कात देना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन अगर वो साहिब हैसियत है उस पर तो फिर लागू है ना, फर्ज लागू तो वो है, फर्ज में है, लागू तो तो है, सखावत लेकिन अगर इससे हटकर वो करता तो फिर उसका उससे हटकर करना वो सखावत का आलापन है कि बंदा जो वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, वो तो देने ही देने, उसके बदले में भी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसे मकाम सखावत देता है, लेकिन उससे बढ़कर इंसान करता है तो वो तो सखावत का आला दर्जा है सही है, कि फ़राइज़ से हटकर, वाजिबात से हटकर वो दे रहा सही है, है। हुक्म नहीं है इसके बावजूद वो दे रहा है, वो सखावत का आला मकाम है। बहुत शुक्रिया। बिलाल यूसुफज़ई साहब, सर आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है प्रोग्राम का। सर आप हमें ये बताएं, खान साहब खुद इस सिस्टम का हिस्से में हैं, तो आप फरमा रहे हैं कि वो बड़े इक़दामात कर रहे हैं, तो वो तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, तो कैसे बाहर निकलेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप बेहतर मुझे समझा पाएँ तो मेहरबानी होगी। देखिए, आपका उनको इस सिस्टम का हिस्सा करना बिल्कुल जवाज़ है, क्योंकि वो हमारी इस मुल्क के मनसब की आला मनसब फ़ाइज़ हैं। सर हमारे लीडर, हमारा शिकवा बनता है। तो अब देखिए ना, अब हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? अगर वो इस सिस्टम से अपना दस्तबरदार होते हैं तब वो इसका हिस्सा नहीं सिस्टम है। क्या, मैं थोड़ी सी मैं अब जो मेरे माइंड, अच्छा देखिए, वही चौधरीज़म, वही वडेरे, वही जगीरदार, वही सरमायादार, वही अपना टूटा टापी, वही अपना वो, मैं आपको जो पहले बता रहा हूँ, वो कन टूटे वाला जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मोढे दे मोदर छुट्टे ने, वही इलेक्शन है, वही पराडुआ गाड़ियाँ, वही थाने के कल्चर, ठीक है, मेरी बात, वही बरादरीज़म, ठीक है। देखिए हमने जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने वोट दिया ना, हमने तो बरादरी की वजह से दिया है ना, तो इसका मतलब बरादरीज़म तो है ना, जगीरदाराना निज़ाम तो है ना। मैं बात जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये अभी रिसेंटली पिछले मंथ में बड़ा अच्छा इकदाम हुआ पंजाब लेवल पे कि जितनी भी कब्ज़ा माफी की ज़मीन थी ना, सही है, वो सारी उगरा करवानी। ये बड़ा अच्छा इकदाम था। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ जो अच्छा काम किया, ठीक है। अभी इस इधर जो 200 कनाल 100 किला ये जगीरों के पास था, जगीरदारों के पास था, वो इस हुकूमत ने छीना, कोई नहीं छीन सका। कब्ज़ा माफिया थे, वो सब उसको नस्ते नबूद किया, हो रहे हैं। मैंने आपको बात की, सोलो स्टडी विन द रेस, एक टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर आप कहें ना कि एक दम हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब इंशाल्लाह हमारी प्रोग्रेस, बड़ी अच्छी अचीवमेंट आ रही है। अब देखें क्या नाम, हमारे पुलिस कल्चर देख लें। अब हमारे MPs MNA, मैंने लिटरली खुद देखा कि MNA की सिफारिश बहुत अप लेवल जाकर जिसको कॉल पर अटेंड करता है, सच्चो, वो कहता है लिख के दे हमें। नहीं, ये तो वाकई बात सही है, हमें लिख के, हाँ नहीं, वो कहते हैं लिख के दे हमें। आपने आपका सिस्टम के ने कहा कि रिश्वत नहीं चलेगी, सिफारिश नहीं चलेगी। एक कॉल किया MPA ने, उसने कहा सर आप मुझे रिटर्न लिख के दे दें। एक कौन कह रहा है, सही कह रहा है, 8 स्केल 9 स्केल है उसका, वो कह रहा है कि पार्लियामेंट को कह रहा है कि मुझे लिख के दें। ये देखें, ये वो तजाद है, ग्रास रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक सब कुछ चल रहा है। नहीं, अब देखें उस लेवल पे नहीं, जितना था उतना नहीं है, मगर बहुत हद तक कमी है इसमें। अब कहें ना व्हाइट वॉश हो जाए, वो अभी नामुमकिन। अच्छा, वो 25 करोड़ एक बंदे ने लगाया सपोज, वो कैसे रिटर्न करेगा, वो तो मुझे बताया, मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। अब देखिए ना 25 करोड़ जो फिगर है उसकी 40 लाया, 50 लाया वहाँ। अब जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है ना, उसकी 3 करोड़ का खान साहब ने पार्टी चलेक्शन लड़ा, वहाँ से टिकट दे देते हैं। नहीं देखिए मेरी बात, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है ना, वो तो किसी को भी नहीं पता। वो कही जाए मुंह में, मैंने भी 50 करोड़ लगाया लगते हैं सर। देखिए सबसे गुंजान आबादी ना फैसलाबाद की है, और जो उस सर ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फैसलाबाद की ना, सबसे जो मेजर हल्का था ना, वो NA 94 था। अब जो अब है वो 109 है। इसमें इतनी गुंजान आबादी है नहीं, तो इधर इतना खर्चा नहीं हुआ। मैं कैसे लोगों की बातें मान लूं, 50 करोड़ हो गया, चलो जी 10 करोड़ है। अब देखिए मेरी बात सुने, अब फरक हबीब की बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अब फरक हबीब है, अब उसके पास तो पैसे ही कोई नहीं है, वो MNA बन गया। अब किस तरह करोड़ों की बातें कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रही। करोड़ रुपया होगा, 2 करोड़ तक हक है, 50 लाख रुपया इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है। 2 करोड़ तो पार्टी ने टिकट देने के लिए, पार्टी फंडिंग के लिए दिया। सर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मौजूदा MNA मियां फरक हबीब है, वो वफाकी वजीर भी है सर, इनके पास इन्वेस्टर भी तो है ना। फरक हबीब ने बुलाया, देखिए इन्वेस्टर की बात ना देखिए, आपका बात यहाँ पे, आपकी यहाँ पे बात का थोड़ा आ गया। आपने पहले खुद कहा कैंडिडेट कह रहा है, अब आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। जगीरदार निजाम सारा वही है ना, फरक हबीब इन्वेस्टर तो नहीं ना, वो तो खुद है, तो उसने कैसे फिर प्रेजेंट किया?
नहीं देखो, पार्टी का मंशूर है, यूथ को टिकट दी है, जगीरदार खत्म किया है, ये एक हमारी पार्टी का। जगीरदार वही नून लीग के, वही पीपल्स पार्टी के सारे, तो वही खत्म कैसे कर दिए? सर मैंने पहले कहा है कि वक्त है, मगर जो हमारा आएगा। अच्छा अभी आया नहीं, आप मानते हैं? मैंने ये कहा 50% तक हम अप्लाई कर चुके हैं, अभी टाइम लगेगा इंशाल्लाह, वो आगे 5 साल हमारे हैं। देखिए ना, अब रमजान मुबारक का महीना, जी जी जी, रमजान शरीफ की आमद है, जी जी, हर चीज का रेट इतना बढ़ गया हुआ है, ठीक है, फिर नून लीग, पीपल पार्टी और खान साहब में तब्दीली का क्या फर्क? सर देखिए अब तब्दीली की बात सुने, हमारा मेन बंदा हमारी पार्टी है जहांगीर। सर मेरी बात सुने, अब जो शुगर माफिया है वो नून लीग का है, उसमें अगर जहांगीर तरीका पीटीआई का है। सर आपने क्या किया है? मैं तो गुजारिश करूं, सर हमारा देखिए मेरी बात सुनो, ग्रॉस लेवल की पीटीआई का क्या रोल है ना, मैं तो सर वो बंदा जहांगीर तरीका पीटीआई का अहम बंदा, हमने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, इससे अच्छा क्या करें हम अपनी पार्टी, इससे अच्छा हम और आपको क्या स्टेट दें? सर लेकिन गरीब आवाम तो वैसे ही रो रही है ना, अब ये तो अपर लेवल पे है, गरीब आवाम तो अभी भी वैसे, आज भी चीनी लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है और चीजें इतनी महंगी हैं। अब सर ये क्या है, ये तो अपर लेवल पे हो ਅਸੀਂ गया। ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ अपना रैंट देखिए अब वो बात अब वो बात है ना, मैंने पहले कहा जब तक हमारी आवाम से लालच खत्म नहीं ना होगी, अब एक बंदा है उसको 2 किलो चीनी आज गुजर जाएगा उसका, ठीक है ना, वो कह रहा है कि मैं अगले 10 दिन का स्टॉक इकट्ठा कर लूँ, तो किलो तो फिर आनी है ना फिर। अब उस किलो तो खत्म कर ले कि हमारी आवाम को सबसे जो बुनियादी जरूरत है ना उस तालीम की है। लोग कहते हैं कि खान साहब ने महंगाई कर दी, खान साहब ने ये कर दिया, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ खान साहब वेरी नाइस पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनकी पर्सनैलिटी देखी जाए, फर्देवाद को देखी जाए, तो मैं कहता हूँ यार वेरी नाइस पर्सन, लेकिन खान साहब का कसूर कहाँ है? खान साहब इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, वो इस मैं कहता हूँ कि सिस्टम का जो क्राइटेरिया है ना, जो सराउंडिंग एरिया है, वो उसके अंदर फंसे हुए हैं, पता नहीं वल्लाह क्या मजबूरियाँ उनको इस वक्त, क्या मामलात हैं, ठीक है, वो इसको जड़ से क्यों नहीं उखाड़ पा रहे? मैं यहाँ पर मेरा इख्तलाफ है, वो इनको ठोकर मारे इस सिस्टम को, निज़ाम से बाहर आने। देखिए ना कादरी साहब थे ना, उन्होंने इलेक्शन नहीं प्रेजेंट किया, उनका ये सिस्टम, ये जदीदी निज़ाम है, ये है, ये वो, वक्ती लोगों ने कहा यार नहीं, अपना कादरी साहब को हिस्सा लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो खैर नहीं। अब खान साहब खुद माने ये सिस्टम गंदा है, ये गला छिड़ा निज़ाम है, ये 40 साल 50 साल से हमारे सरों पर राज कर रहा है, और इस सिस्टम में जो भी आएगा वो ये सिस्टम सबको गंदा ही करता जाएगा। अब देखिए उस सिस्टम को चेंजिंग करने के लिए हमारे मुल्क में पहले आपको हमारे ब्यूरोक्रेट चेंज करनी पड़ेगी हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा अल्लाह अमल उसके साथ चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि जो नेक्स्ट ईयर आपको बड़ा अच्छा इक़दाम मिलेगा हमारी तब्दीली का। तो मैं फिर वही कहूँगा कि हमारी इस कोशिश को सराहिएगा आप लोग, और हम आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारी पार्टी बड़ा अच्छा इकदाम करेगी इंशाल्लाह। बिलाल यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे कि 110 ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।